students, how are you all? I hope you all are fine. I am Sharandeep Kaur and today we are going to continue our topic nucleophilic substitution reactions. लास्ट लैक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ SN2 ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ SN1 ਟਾਈਪ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। SN2 ਟਾਈਪ ਦੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੈਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ SN1 ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ। SN1 ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ SN and 1 ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। S ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। N ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਨਿਊਕਲੀਓਫਿਲਿਕ। ਐਂਡ 1 ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? यूनिमोलिकुलर। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ यूनिमोलिकुलर ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ SN2 ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। SN2 ਕੀ ਸੀ? ਬਾਈਮੋਲਿकुलर। ਇਸ ਚ ਬਾਈਮੋਲਿकुलैरिटी ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਾਈਮੋਲਿकुलर ਹੈ ਇੱਕ यूनिमोलिकुलर ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਈਮੋਲਿकुलर ਐਂਡ यूनिमोलिकुलर ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਈਮੋਲਿकुलर ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰੇਟ ਡਿਟਰਮਾਈਨਿੰਗ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦੋ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਾਈਮੋਲਿकुलर ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਓਨਲੀ ਇੱਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ यूनिमोलिकुलर ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਣੇਗੀ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ 2 ਸਟੈਪ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦਾ? 2 ਸਟੈਪਸ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਰਤਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਿਊਕਲੀਓਫਿਲਿਕ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਵੀ RX ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਵਾਇਆ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਣੇਗਾ ਕੀ RNU है ना। यही अपने को बनेगा देन न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज प्लस X नेगेटिव अपने को बाहर हो जाएगा। तो आप उसी तरीके का एक रिएक्टेंट लेके चलांगे। इत्थे आप जो रिएक्टेंट लेके चल रहे हो ऑप्टिकली एक्टिव लेके चल रहे हो ताकि तुहानू उहदी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी नाल समझ आ जाए। आप एक ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड लेके चल रहे हैं कार्बन है कार्बन के नाल अपने को की लग्या होया मान लो क्लोरीन लग्या होया ठीक है। क्लोरीन के नाल कार्बन के नाल एक हाइड्रोजन लगी है एक ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਮਿਥਾइल ग्रुप एंड एक की लगाया इथाइल ग्रुप। सेम यही ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ कंपाउंड की है लास्ट लेक्चर ਚ लेके ਚੱਲੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ SN2 ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟਲੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ क्लोरीन है ना मतलब ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈਲੋਜਨ ਹੈ ਇਹ ਰਿਮੂਵ ਹੋਏਗਾ। SN2 ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਦਾ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਸੀ ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਹਲੇ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਦੋਂ ਆਏ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ SN2 ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕਰਾਂਗੇ SN2 ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਫੋਲੋ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਟਰੋਂਗ। अगर अपना न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है ठीक है देन अपने को की होगा SN2 फॉलो होगा। अगर अपना न्यूक्लियोफाइल की है वीक है देन अपने को की होगा SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा ठीक है। हुण इत्थे की है मान लो अपना जो अपन न्यूक्लियोफाइल लेके चले आ ये अपने को वीक है इन्ना वीक है कि न्यूक्लियोफाइल जदों तक कार्बन ते अटैक करेगा उदों पहला ही जेड़ा कार्बन ते क्लोरीन दा बॉन्ड है ना ये ब्रेक हो जाएगा ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप दे विच अपने को की होएगा कार्बन दा एंड क्लोरीन दा बॉन्ड ब्रेक होएगा। देखो क्लोरीन ते की है पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन ते की है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अगर अपना ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है देन अपने को होएगा कि कार्बन है प्लस Cl नेगेटिव में कटता बाहर ठीक है। कार्बन के नाल की लग्या होया हाइड्रोजन कार्बन के नाल की लग्या होया मिथाइल ग्रुप कार्बन के नाल की लग्या होया इथाइल ग्रुप ठीक है। अगर क्लोरीन बाहर चला गया तो अपने को इत्थे की हो जाएगा कार्बोकेटाइन बन जाएगा ठीक है। ये जस्ट एक बार मैं लिखा है कि इत्थे अपने को की होया क्लोरीन बाहर हो गया एंड कार्बोकेटाइन बन गया। बट जिहड़ी इहदी ज्योमेट्री है ना बेटा सही नहीं हैगी। इहदी ज्योमेट्री बनूगी कि इहदी ज्योमेट्री देखो जदों ही क्लोरीन इहदे नाल चला गया
उस टाइम पे की होएगा ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ अगर किसी भी ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਬੌਂਡਸ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੈਨ ਉਹਦੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਈਗੋਨਲ ਪਲੇਨਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ 3 ਬੌਂਡਸ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ ਕਾਰਬਨ ਕੋਲੇ ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ ਕੋਲੇ ਦੈਨ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ कार्बन पे है पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन CH3 C2H5 ये दी ज्योमेट्री हो जाएगी ये ज्योमेट्री केड़ी है बेटा ट्राइगोनल प्लेनर हुन ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਬਵ ਦੀ ਪਲੇਨ ਐਂਡ ਬਿਲੋ ਦੀ ਪਲੇਨ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਕਾਰਬਨਸ ਬਟ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਲੇਨ ਤੇ ਆ ਗਏ अपनी ज्योमेट्री ही की है ट्राइगोनल प्लेनर अगर ये प्लेनर ज्योमेट्री है इट मींस अपने को तीनों जेडे बॉन्ड्स होंगे की होंगे प्लेन ते ही रहेंगे दैट्स व्हाई हुन अबव दी प्लेन एंड बिलो दी प्लेन वाला कांसेप्ट फिलहाल नहीं तो आप इग्नोर करना इत्थे अपने को की आ जाएंगे तीनों प्लेनर बॉन्ड्स ही बनणगे क्लियर है हुन अपने को जेड़ा यही बनया बेटा एक ट्रांजिशन स्टेट लास्ट टाइम SN2 टाइप रिएक्शंस दे विच जेडी ट्रांजिशन स्टेट बनती सी उस ट्रांजिशन स्टेट दे अंदर अपने कोले की हुंदा सी कि 5 मेंबर्ड एक अपने कोले स्ट्रक्चर बनती सी पेंटागोनल स्ट्रक्चर बनती सी या फिर आपां उहनूं बोल सकदे हां पेंटावेलेंट ज्योमेट्री बनती सी है ना हुण इत्थे अपने कोले की बनी है ये ट्राइगोनल ज्योमेट्री बनी है ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री इत्थे आ गई है एंड इत्थे की बन है कार्बन ते पॉजिटिव चार्ज ट्रांजिशन स्टेट SN2 टाइप ते की सी काफी ज्यादा अनस्टेबल सी बट जेड़ा कार्बोकैटायन हुंदा दैट इज समवट स्टेबल देन दैट उस स्ट्रक्चर के नालों जेड़ा अपने कोले कार्बोकैटायन है स्टेबल है अगर ये स्टेबल है तो काफी टाइम तक अपने कोले की है एग्जिस्ट कर सकता है दैट्स व्हाई एक 2 स्टेप रिएक्शन है हुन इहदा आपां की करांगे सेकंड स्टेप करांगे तो सेकंड स्टेप इहदा नाल नाल फॉलो होएगा सेकंड स्टेप दे विच आपां कार्बोकैटायन लेके चलांगे देन आपां न्यूक्लियोफाइल दा अटैक करवावांगे फिर देखांगे ज्योमेट्री ते की चेंज होंदा क्लियर है हुन आपां एक बारी इरेज करके की करदे हां सेकंड स्टेप करदे हां की बनदा हाँ जी सैकेंड स्टेप दे विच आपां की करांगे जेड़ा अपने कोल फर्स्ट स्टेप दे विच कार्बोकैटायन बनिया सी ओनू आपां लेके चलदे हां ठीक है हुन अपने कोल की आएगा न्यूक्लियोफाइल इत्थे न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा अपने कोल OH नेगेटिव है न्यूक्लियोफाइल आया न्यूक्लियोफाइल ने की करना है कार्बोकैटायन पे अटैक करना है हुन देखो इत्थे जेड़ा OH नेगेटिव है ये फॉरवर्ड अटैक भी कर सकदा है बैकवर्ड अटैक भी कर सकता है ठीक है लास्ट टाइम आपां जो कीता सी उत्थे भी एक बारी तां आपां फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों तरीके दा अटैक करवाया सी बट फॉरवर्ड अटैक पॉसिबल नहीं हुंदा सी क्यों नहीं पॉसिबल हुंदा सी बिकॉज अपने कोल एक तां न्यूक्लियोफाइल है एक अपने कोले की पिया सी उहदे विच क्लोरीन पिया सी या फिर आपां कह दईए हैलोजन पिया सी जिहदी लोन पेयर दी वजह करके रिपल्शनस आ जांदी सी दैट्स वाई फॉरवर्ड अटैक पॉसिबल नहीं हुंदा सी बट हुण इत्थे रिपल्शनस दी कोई भी गल ही नहीं हैगी कोई अपने कोले नेगेटिवली चार्ज्ड क्लाउड प्रेजेंट ही नहीं हैगा दैट्स वाई इहदा फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों तरीके दा अटैक हो सकदा है इसी वजह करके इहदे अपने कोले की है दो प्रोडक्ट्स बनणगे किहड़े-किहड़े प्रोडक्ट्स बनणगे पहला आपां की करदे हां इहदा फॉरवर्ड अटैक करवांगे अगर फॉरवर्ड अटैक करेगा तो कार्बन के नाल किहदा अटैक हो जाएगा OH का तो कार्बन के नाल फॉरवर्ड साइड तो की होएगा OH लग गया ठीक है एंड बाकी जेडे तिन्ने बॉन्ड है वो की करनगे अपनी ज्योमेट्री उसी तरीके नाल रिटेन कर लेंगे जिवें इन्हां दी पहलां सी H CH3 एंड देन C2H5 क्लियर है अगर ये बैकवर्ड अटैक कर रहा है तो की होएगा OH आएगा पिछली साइड तो मतलब बैक साइड तो आया OH फिर की करेंगे ये अपनी ज्योमेट्री नु उसी तरीके दे नाल चेंज कर लेंगे की होएगा इत्थे अपने कोले हाइड्रोजन लगेगा देन CH3 देन इथाइल ग्रुप दैट इज C2H5 ठीक है अपने कोले ए वाले ग्रुप्स लग गए हुण देखो अपने कोले की है एक टाइप नाल की होया पहला अपने कोले की बनया ए बनया देन ए बनया हुण देखो आपां लेके की चलने सी अपना जो कंपाउंड सी आपां केड़ा लेके चलने सी C Cl H CH3 C2H5 यही आपां लेके चलने सी है ना हुण देखो इहदे विच अपने कोले की हो रहा है जिवें दा आपां लेके चले सी अपना कंपाउंड अपना रिएक्टेंट ए वाला प्रोडक्ट बिल्कुल सेम इसी तरीके दा बन रहा ना बिल्कुल सेम इसी तरीके दा अपने कोल प्रोडक्ट बन रहा है इत्थे अपने कोले की हो रहा है जिवें दा आपां प्रोडक्ट रिएक्टेंट लेके चले सी जेड़ा प्रोडक्ट बन रहा है
ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ SN2 ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਰਜ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਬੈਕਵਰਡ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਵਰਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਅਗਰ ਫੋਰਵਰਡ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਟੇਨ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟਰਕਚਰ, ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਕੀ ਦਾ OH ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਟਰਕਚਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਟੇਨ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਵਰਜ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਨਿਊ ਵਰਡ ਆਇਆ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਇਨਵਰਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ, ठीक है। तो हुण अपने को ये ज्योमेट्री सी, अगर इधर इन्वर्जन रिटेंशन का की मतलब सी कि मान लो अगर मैं ये ज्योमेट्री डेक्स्ट्रो लेके चलना, ठीक है, ये ज्योमेट्री अगर मैं डेक्स्ट्रो लेके चल रही हां, देन अपने को रिटेंशन वाली ज्योमेट्री भी की आएगी डेक्स्ट्रो, बट जेडी अपने को ये वाली ज्योमेट्री है इन्वर्जन वाली ज्योमेट्री है वो की आएगी लीनियर, ठीक है। इट मींस जदों भी SN1 रिएक्शन हुंदी है तो SN1 रिएक्शन दे विच अपने कोले की हो रहा है, एक इहे जिहा प्रोडक्ट बन रहा है जेड़ा कि इन्वर्जन वाला है, एक इहे जिहा प्रोडक्ट बन रहा है जेड़ा कि रिटेंशन वाला है, ठीक है। तो हुण इत्थे अपने कोले की बन रहा है, दोनों नूं अगर आपां देखिए, इन्हां दोनों स्ट्रक्चर्स नूं देखिए, अगर मैं इन्हां दे विचकार की लगा दा, मिरर लगा दा, है ना, तो एक दूसरे दी मिरर इमेजेस आपां नूं शो हो रहे है ना। ये वाली जिहड़ी स्ट्रक्चर है, ये वाली स्ट्रक्चर दी मिरर इमेज आपां नूं शो हो रही है, ये दोनों की ने आपस में मिरर इमेजेस ने, है ना, एक डेक्स्ट्रो है एक लीगो है, तो आप इन्हां नूं की बोलदे हुंदे आ एनेंशियोमर्स, है ना, कि अगर अपने कोले की होवे दोनां दी अपने कोले दो आइसोमर्स ने जिन्हां दा मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आ रहा है, दोनां दा मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आएगा अपने कोले, है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आ रहा है, एक अपने कोले डेक्स्ट्रो है एक अपने कोले लीगो है ना, तो इन्हां नूं आपां की बोलदे हुंदे आ एनेंशियोमर्स, ये दोनों आपस में एनेंशियोमर शो कर रहे हैं। तो जदों दो एनेंशियोमर दा की आ जाए अपने कोले मिक्सचर आ जाए, 50-50% दोनों का मिक्सचर आएगा, तो उस मिक्सचर को आपां की बोलते हैं रेसेमिक मिक्सचर, एंड इस प्रोसेस को की बोलते हैं रेसेमाइजेशन। जिस तरीके दे नाल अपने कोले SN2 दे विच केड़ी प्रोसेस हुंदी सी इन्वर्जन, उवें इत्थे की हो रही है रेसेमाइजेशन, इत्थे अपने को जिहड़ी प्रोसेस हो रही है उन्होंने आपां की बोलांगे रेसेमाइजेशन। तो अपने को रेसेमाइजेशन हो रही है जिहदे थ्रू अपने को की बन रहा है रेसेमिक मिक्सचर बन रहा है, क्लियर है। ये अपने को प्रोसेस सी SN1। हुण आपां की करने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर लैने SN1 दे, क्लियर है। हाँ जी बेटा, जिवें आपां SN2 दे विच कुछ पॉइंट्स डिस्कस कीते सी, उवें आपां SN1 दे विच कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। तो सब तो फर्स्ट अपना जिहड़ा पॉइंट हैगा दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। देखो रेट ऑफ रिएक्शन अपनी किहदे इक्वल हुंदी है, रेट कांस्टेंट इनटू जिहड़ा अपना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होएगा ओदी आपां की करदे हुंदे हां कंसंट्रेशन। हुण आपां इत्थे दो स्टेप कीते हैं, दोनों स्टेप दे विच आपां ये देखना कि अपना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होएगा किहड़ा। एक बार रिवाइज करते हैं, पहला स्टेप की सी, पहला अपने कोले एक कंपाउंड सी, ठीक है, आपां की कीता पहला इहदा अपने कोले की बने कार्बोकेटाइन, C ते पॉजिटिव चार्ज H CH3 C2H5। देखो चाहे आपां कह लईए कि कार्बोकेटाइन की हुंदा स्टेबल हुंदा, ठीक है, बट फिर भी हैगा तो एक इंटरमीडिएट ही है ना, हैगी तो अपने को ट्रांजिशन स्टेट ही है ना। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है कि ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇੱਥੇ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਇਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਸਟੇਬਲ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ फर्स्ट। सैकेंड अपने को की हुंदा सी कार्बोकेटायन तो आपां फिर रिएक्शन करवाउंदे सी, देन अपने को रेसेमिक मिक्सचर बनदा सी। वो जिहड़ा अपना सेकंड स्टेप सी, फर्स्ट स्टेप अपना की हुंदा स्लो, एंड जिहड़ा सेकंड स्टेप आपां कीता सी दैट इज आवर फास्ट स्टेप, है ना। हुण आपां नूं पता है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप किहड़ा हुंदा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप किहड़ा हुंदा, स्लोएस्ट स्टेप इन द रिएक्शन, है ना। तो दोनों के विचों स्लो स्टेप अपने को केड़ा आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है, तो फर्स्ट अपना स्लो है, तो ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਰੇਟ ਡਿਟਰਮਾइन, ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੇਟ ਡਿਟਰਮਾइनिंग ਸਟੈਪ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਰੇਟ ਡਿਟਰਮਾइन ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਕਿਹੜਾ, ਕਾਰਬਨ, ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਲੋਰੀਨ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਮਿਥਾइल ग्रुप ਲੱਗਿਆ,
गया एंड एक इथाइल ग्रुप लग गया। ठीक है, सिर्फ आपां एक रिएक्टेंट का यूज कर रहे हैं, दैट्स वाई अपने कोले जिहड़ी अपनी रेट है वो एक दे थ्रू ही शो हो रही है, तां करके आपां इहनूं की बोलदे हैं यूनीमोलीक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, इहदी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है 1, इहदा ऑर्डर कितना है 1, दैट्स वाई इहदा नाम की है SN1 यूनीमोलीक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है बेटा ये चीज। सेकंड पॉइंट देखो अपने को की है कितने स्टेप रिएक्शन हो रही है, ये 2 स्टेप रिएक्शन हो रही है, तो सेकंड पॉइंट ही अपना ये है कि एक ही है 2 स्टेप रिएक्शन। चाहे ये भी लिख लो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कि ਜਿਹੜਾ अपने को फर्स्ट स्टेप है दैट इज स्लो एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ਤੇ ਜਿਹੜਾ अपने को सेकंड स्टेप होएगा वो की होएगा फास्ट। ठीक है, थर्ड पॉइंट है ਆਪਾਂ ਇਸ ਚ ਸੋਲਵੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। याद करो SN2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੋਲਰ ਅਪ੍ਰੋਟਿਕ ਸੋਲਵੈਂਟ है ना। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ है, ਪੋਲਰ प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज करेंगे, मतलब यह जा सॉल्वेंट जेड़ा कि पोलर होवे ते जिहदे विच की पे होण प्रोटोन पिया होवे, ठीक है, H पॉजिटिव पिया होवे, तां पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दा आपां इत्थे यूज करना है। ठीक है, फोर्थ अपने कोले पॉइंट है कि इहदे विच अपने कोले प्रोडक्ट किवें दे बनदे आ। प्रोडक्ट अपने कोले 2 बन गए, इन्वर्जन एंड रिटेंशन। तो इहनूं थोड़ा जिहा डिटेल च लिखो, इफ द रिएक्टेंट इज ऑप्टिकली एक्टिव, है ना। ऑप्टिकली एक्टिव अपन को पता केड़ा हुंदा, जिहदे कोले की होवे कायरल कार्बन प्रेजेंट होवे। अगर अपना रिएक्टेंट ऑप्टिकली एक्टिव है देन जेड़ा अपने कोले प्रोडक्ट बनूगा वो की होगा, देन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज रेसिमिक मिक्सचर। देन अपने कोले प्रोडक्ट की बनाएगा, रेसिमिक मिक्सचर बनाएगा। क्लियर है, तो ये अपने को कुछ पॉइंट्स ने SN1 रिएक्शन दे। ਇਹਦੀ सिर्फ अपने को ਹੁਣ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਆਪਾਂ SN1 ਐਂਡ SN2 ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬਟ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। क्लियर, आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਲੈਕਚਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।